to the book reading of Amrit. It's really Amrit. And I can see that how happy we all are to no, connect through this Amrit and revive the joy of reading it over and over again. Good evening, everyone. While I was going through a couple of quotes by Vivekananda, I stumbled upon today's quote, how he has kept knowledge above everything. And this type of knowledge is not only the information that we collect. Knowledge and information are two different things. And information you can collect, now it's Google at your disposal, so a lot of information is available. But the knowledge is different. Information that becomes your experience becomes your knowledge. So to impart knowledge, you have to have first-hand experience. Otherwise, that itself becomes a disqualification to speak about something or speak on something. So that's why when gurus are yeah, people are joining in. Most welcome. I was just briefing everybody about the difference between information and knowledge. Knowledge is something that has to have an experience attached to it, or inner change attached to it to become a validation. Information, it generally is given by others, is taken by others. It it won't become your knowledge till you experience it. So this is how Swami Vivekananda has kept knowledge above everything, because it's the knowledge that makes you aware that you are here for a different reason. You are not here only to go through a mundane life, just like animals taking birth, looking out for food, procreating, raising your kids, and to die one fine day. A human being, such amazing creation of the creator, it is not meant only for this no, shallow purpose. Of course, we enjoy life. Of course, we do everything that one has to do, but there is something that completes the human birth, and that is what is the real knowledge. It's described in Gita. I think I must have referred it. It's my favorite quote from Gita, which reminds me of my purpose, which is there are four types of पुरुषार्थ. चार धर्म होते हैं एक इंसान के. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. धर्म यानी सच्चे रास्ते पे चलना, नॉट रिलीजन. सच्चाई के रास्ते पे चलना, अच्छे रास्ते पे चलना, अच्छे संस्कार लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, उसको कहते हैं धर्म से चलना. अर्थ यानी आप खुद को सस्टेन करने के लिए प्लैनेट अर्थ पे सच्चाई से धन कमाना और उसका उपयोग करना, ना मेहनत से पैसे कमाना और उससे अपने लाइफ को सुंदर बनाना, तो वो हो गया अर्थ. काम यानी प्रोक्रिएशन इज इम्पॉर्टेंट. देयर इज नथिंग बैड अटैच टू काम. हम लोग उसको गलत तरीके से देखते हैं. एक्चुअली फॉर एनी स्पेशीज टू प्रोग्रेस, किसी भी प्रजाति को आगे ले जाने के लिए प्रोक्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर काम नहीं रहेगा, अगर सब लोग रिनाउंस कर जाएंगे, तो ह्यूमन रेस कैसे सरवाइव होगी. तो काम का भी एक अपना महत्व है. इसीलिए विवाह करके प्रोक्रिएट करना और इस वंश को की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना, ये भी एक जिम्मेदारी दी है भगवान ने. पुरुषार्थ है ने विच यू हैव टू परफॉर्म द ड्यूटीज एज अ ह्यूमन बीइंग. यू हैव टू परफॉर्म. रहते रहते सिर्फ एक ही रह जाता है, वो है मोक्ष. और यहाँ पे आके 90% से ज्यादा लोग ना इस तरफ मुड़ते ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मुड़ते हैं. अब मोक्ष के लिए चाहिए ऐसा ज्ञान जो आपकी दृष्टि को बदल दे. एक अज्ञानी, एक सोए हुए इंसान से आपको एक जागृत और एक अवेयर इंसान बनाए, तो वो ज्ञान सिर्फ गुरु ही दे सकता है.
तो जब हम अमृत पढ़ते हैं उसमें बहुत सारा गाइडेंस गुरुजी ने दिया हुआ है। वो इंफॉर्मेशन है आपके लिए। वो नॉलेज तभी बनेगा, वो ज्ञान तभी बनेगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जब आप उसको आपके जीवन में प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, वो बदलाव आप लेके आएंगे, तब वो आपका ज्ञान बन जाएगा। सो इंफॉर्मेशन यानी ना किसी भी चीज की जानकारी और नॉलेज यानी ज्ञान में ये फर्क होता है। जानकारी हमेशा दूसरों से आती है, ज्ञान अपना बन जाता है एक्सपीरियंस से। तो ये दूसरा चैप्टर शुरू भी हो गया एंड इट्स सच अ वंडरफुल जर्नी विथ यू ऑल। सो दूसरे चैप्टर की शुरुआत होती है हाउ टू बी इन द वर्ल्ड एंड नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी इस पृथ्वी पे, इस संसार में रहना तो है, लेकिन यहीं पे खो नहीं जाना है। हमें इस संसार का बनना नहीं है। इस संसार में हम आए हैं किसी उद्देश्य को लेके, कुछ पर्पस को लेके। हम यहाँ पे खो जाते हैं, वो प्रॉब्लम है। तो गुरुजी हमें बता रहे हैं किस तरह से हम, हमारा यहाँ पे आना एक मीनिंगफुल बात है, और उसको बिना खोए, यहाँ पे बिना गुम होए हम कैसे उसको न पूर्ण कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड फ्रॉम अमृत। I have written and spoken a lot about anger, fear, hatred, attachment, jealousy, greed, and arrogance. But it's always been about the negative emotions and qualities one must avoid or overcome to become a better human being. बहुत लोगों को ना आध्यात्मिक प्रगति यानी ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या करना है, कहीं गुफा वुफा में जाके या सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ बनना है। नहीं, यहाँ पे गुरुजी बहुत सिंपल डेफिनेशन देते हैं आध्यात्मिक प्रगति की। आज आप जो भी है उससे थोड़ा अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना ही आध्यात्म है। और ये लगातार, ये कोशिश लगातार होनी चाहिए। इसमें कोई एक पड़ाव नहीं है कि यहाँ तक हो गया तो बस प्रगति हो गई, ऐसे नहीं होता है। वो प्रगति चलती रहती है और ज्यादा शुद्धि होती रहती है। लेकिन शुरुआत में जो गुरुजी ने बोला है कि एंगर, फियर, ग्रीड, अटैचमेंट, जेलसी, एरोगेंस, इन सब से अगर आप आगे जाएंगे तो सही मायने में आप प्रगति कर रहे हैं एक इंसान की तरह। आई एम गोइंग टू राइट अबाउट सर्टेन क्वालिटीज यू कैन डेवलप or discover within yourself, which will not only help you become a better human being, but will take your mental, emotional and spiritual growth to an extremely refined level of existence. इसके अलावा भी गुरुजी कुछ सुझाव हमें देना चाहते हैं, जो अगर हमने इम्प्लीमेंट किए तो हमारी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल जो प्रगति है, मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक जो प्रगति है, वो एक और बड़े ऊंचाई तक हम लेके जा सकते हैं। The end result being that you can lead a richer and fuller life entirely on your terms. ये सुनने में भी कितना अच्छा लगता है, लाइफ ऑन अवर टर्म्स। ऐसे तो कभी लगा ही नहीं जीते हुए कि लाइफ हमारे टर्म्स से है। ऐसे हमेशा लगता है कि कोई और खिलवाड़ कर रहा है, हम चाहते कुछ है और लाइफ में कुछ और होता है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा सुनना कि गुरुजी क्या एक्चुअली समझाना चाहते हैं हमें, और किस तरह से हम अपना लाइफ अपने टर्म्स पे जी सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि कैसे फियर को ओवरकम करना है या अटैचमेंट एंड जेलसी से कैसे बचना है। तो वो तो ऑलरेडी हमारे अंदर है, तो उनसे बचाव करना है। ये जो चीजें गुरुजी सुझाव दे रहे हैं, इनको हमें डेवलप करना है। शायद ये हमारे अंदर है ही नहीं, या है तो भी बहुत कम मात्रा में है। तो उनको पूरे निखारना है, उनको पूरी क्षमता से बाहर लाना है। ये पॉजिटिव क्वालिटीज है, इनको हमें ध्यान से डेवलप करना पड़ता है। कभी कभी इनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो पहली जो क्वालिटी है और बड़ी खूबसूरत क्वालिटी है, जो आप बिल्कुल कहते हैं ना, परिश्रम के साथ अगर आप डेवलप करें तो आपको इसके बहुत ही अच्छे परिणाम नजर आ सकते हैं, वो है इनर डिटैचमेंट यानी आंतरिक संन्यास। अब संन्यास का मतलब भी मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन अभी के लिए लिटरल ट्रांसलेशन लेना पड़ेगा मुझे सहारा। इनर डिटैचमेंट यानी आंतरिक संन्यास। इनर डिटैचमेंट इज नॉट द अपोजिट ऑफ अटैचमेंट। ये बात पहले तो हमें समझनी है कि डिटैचमेंट अटैचमेंट का अपोजिट नहीं है।
यानी आसक्ति का अपोजिट संन्यास नहीं है। आसक्ति यानी किसी को पकड़ के रहना, संन्यास यानी छोड़ देना। तो इतना अपोजिट नहीं है, इसमें भी कुछ बारीकियां है जो हमें समझनी है। देयर आर फाइनर पॉइंट्स which we have to pay attention to. Attachment is fear of losing someone or something, and the only way you can overcome attachment is to lose this fear by walking into it with wisdom and a higher understanding of life. मुझे लगता है आज की जो परिस्थिति है वो सबसे आइडियल है इनर डिटैचमेंट डेवलप करने के लिए, बिना डरे। क्योंकि हमेशा जब पा लेते ना तो खोने का डर अपने आप से आ जाता है। जब कुछ नहीं होता, जब आप रास्ते पे लोगों को देखते हैं वो हमसे ज्यादा तनाव मुक्त या हमसे ज्यादा खुश इसीलिए नजर आते हैं क्योंकि उनको खोने का डर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो खोने का डर क्या होगा। लेकिन जब हम सब कुछ पा लेते हैं तब खोने का डर हमें सताने लगता है, और उस डर से हम एक अलग तरह से व्यवहार करने लगते हैं। हर चीज को पकड़ के रखना चाहते, हर चीज को संजो के रखना चाहते, ना जमा करके रखना चाहते हैं, और पूरा जो डर है वो हावी हो जाता है। तो यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं कि आपको ना बिना डरे इसमें कूदना है, बिना डरे। इसका मतलब ये नहीं कि सब आप दान धर्म कर दो, सब सब छोड़ छाड़ दो, नहीं। सब कुछ होते हुए भी आपको कभी ये डर नहीं लगना चाहिए कि कल अगर ये नहीं हुआ तो क्या। तो इसको बोलते हैं इनर डिटैचमेंट, यानी डर को निकालना। बहुत लोग डिटैचमेंट को इनडिफरेंस यानी अब इसको हिंदी में थोड़ा समझाना मुश्किल होगा। इनडिफरेंस यानी एक कोल्ड व्यवहार हो जाता है, यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, आध्यात्मिक बनना यानी इमोशनलेस बनना या कठोर बनना या बहुत ही ना ठंडा व्यवहार करना लोगों से या ना लाइफ से, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे खुशी तो वही रहेगी, बस डर निकलना है। द इनर डिटैचमेंट is also not synonymous with renunciation of worldly pleasures and possessions. तो ये संन्यास जो हमें जो हमें लगता है इस वर्ड को सुन के, संन्यास यानी सब कुछ छोड़ देना, वो भी डिटैचमेंट में नहीं आता है। यहाँ पे कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ना हम कुछ कुछ चीजों के गलत अर्थ निकाल लेते हैं, इसीलिए सत्संग का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हर चीज के अलग अलग पहलू हमारे सामने आते और उस चीज को हम ज्यादा अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं। तो संन्यास का अर्थ भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी, जितना भी मैंने गुरुजी से डिस्कशन करके ये प्राप्त किया है। तो उसमें ना इतना ही जाना है कि संन्यास यानी आपको कुछ नहीं छोड़ना है। वो चीज आपको जिस दिन छोड़ देगी अपने आप से, वो संन्यास होता है। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम अपने साथ बहुत कठोर हो जाते हैं। जैसे ना जबरदस्ती हम छोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे उपवास के दिन जबरदस्ती हम खुद को ना अन्न से दूर रखते हैं, वैसे ही लोग जबरदस्ती परिवार से खुद को दूर कर लेते हैं, सुख साधन से दूर कर लेते हैं। लेकिन क्या वो मन से इन सब से दूर हो पाते हैं? अगर नहीं तो वो सिर्फ बाहर का ढोंग हुआ, बाहर का दिखावा हुआ, जो आसपास के लोग शायद विश्वास कर ले। लेकिन अगर आपके मन में उनका ख्याल आता है बार बार, उन चीजों का, उस आराम का, उस व्यक्ति का, तो वो संन्यास नहीं होता है। इनफैक्ट गुरुजी कहते हैं जब आप आध्यात्मिक प्रगति कर रहे होते हैं, मन में अपने आप से एक समाधान सा बनने लगता है, और समाधान जब तृप्ति बन जाता है तब किसी भी चीज की कमी नहीं खलती है और वो ख्याल अपने आप से छूट जाता है। जैसे आप पेट भर खाना खा लिए, आपको खाने का ख्याल ही नहीं आएगा, क्योंकि वो पेट में पूरा खाना पड़ा है तो अब ख्याल नहीं आता है। उसी तरह से जब आप हर एक्सपीरियंस से तृप्त हो जाते हैं तब आपको किसी चीज को छोड़ना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो मन से ही छूट गई है। अब मन उसमें लगता ही नहीं है, अब मन उसकी चाह में बार बार सोचता ही नहीं है, और वह असली संन्यास होता है। संन्यास यानी हम छोड़ के संन्यास नहीं होता है, वो मन से अपने आप से छूट जाता है, तब जाके वो संन्यास कंप्लीट होता है। जबरदस्ती वाला संन्यास गुरुजी बोलते चलता नहीं है। इनफैक्ट मन इतनी खराब ना फैकल्टी है हमारी
कि जितना आप जबरदस्ती छोड़ना चाहेंगे उतना वो आके चिपकता है, उतना उस चीज के ख्याल आपको हैरान परेशान करेंगे। तो इसीलिए जबरदस्ती कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। जिसको कहते हैं थंब रूल है कि ओवर इंडल्जेंस नहीं करना है। भगवान को कोई आपत्ति नहीं है कि आप एंजॉय ना करो या फिर आप किसी भी चीज का आनंद ना लो, बस आपको उसमें अतिरेक नहीं करना है, उसमें ज्यादती नहीं करनी है। प्रॉब्लम वहीं आ जाता है कि हमें आइसक्रीम अच्छी लगी तो हम एक के ऊपर एक खाने लग जाते हैं, हम ये ख्याल नहीं करते कि इसका मेरी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो उसी तरह जब कोई भी इच्छा मन में दब जाती है वो और भीषण स्वरूप ले लेती है। तो थोड़े थोड़े करके आपकी इच्छा तृप्ति होना भी जरूरी है। इच्छा तृप्ति करते वक्त आप आपकी सेहत का, आप आपके कर्मों का ख्याल रखिए, क्योंकि कभी कभी अगर ग्रीड में बदल जाएगी ये इच्छा तो हम गलत कर्म कर बैठते। तो बेसिकली अध्यात्म यानी फाइन ट्यूनिंग है, फाइन बैलेंस है। ना इस तरफ झुकना है ना उस तरफ झुकना है, ना जबरदस्ती किसी को छोड़ना है, ना ही इतना उलझ जाना है कि सब कुछ भूल के सिर्फ एंजॉयमेंट में ही लगे हैं। तो बीच वाला जो रास्ता मैंने हमेशा कहा है, गुरुजी ने हमेशा उसके ऊपर जोर दिया है कि कोई भी चीज जब ज्यादा हो जाती है तो विष समान हो जाती है, और कोई भी चीज अगर सही मात्रा में ले, सही मात्रा में हो तो वो दवाई वो अच्छी होती है। जहर भी सही मात्रा में ले तो वो दवाई बन जाता है, और अच्छी चीज अब अच्छी करके बहुत ज्यादा खा लो तो वो जहर बन सकती है। तो हर चीज में बैलेंस हो, बस और कुछ नहीं चाहिए, यही अध्यात्म है। तो वही गुरुजी बोल रहे हैं कि जब डिटैचमेंट का अर्थ क्या है, डिटैचमेंट यानी किसी चीज से छुटकारा नहीं पाना है या किसी चीज को छोड़ नहीं देना है। वो मन से आप नहीं पकड़ रहे हो ना, मन से आप उलझ नहीं रहे हो ना, बस इतना ही ध्यान रखना है। Genuine renunciation is practiced by a very small percentage of highly evolved souls who have more or less reached the end of their evolutionary cycle as human beings, and believe me, are very difficult to find. सच्चा संन्यास बहुत कम लोगों को ना व्यवहार में लाना पॉसिबल होता है, क्योंकि ये जो कहते मन की अवस्था आती है वो शायद बहुत सारे जन्मों से सब अनुभव लेके जब तृप्ति आती है तब वो अवस्था अपने आप से आ जाती है। जब किसी भी चीज को छोड़ना उनको ना वो छोड़ने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, वो संन्यास अपने आप से आ जाता है। और ये जो कहते हैं ना, ये जो स्टेज है इवोल्यूशन की वो बहुत देर से आती, बहुत ना आखिरी आखिरी जो पड़ाव होता है हमारा ना इंसान से और बेहतर इंसान बनते बनते हम जब भगवान की तरह प्योर हो जाते, लगभग उसी दौरान ये डिटैचमेंट आ जाता है, ये सही वाला संन्यास आ जाता है। तब तक हमारे जितने लेवल पे हम इतना ही ख्याल रख सकते हैं कि हम किसी भी चीज की ज्यादती नहीं करेंगे, सब कुछ एंजॉय करेंगे, ज्यादती नहीं करेंगे। हमारे लिए इतना ही संन्यास काफी है। किसी भी चीज को पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं। छोड़ भी दिया और कभी इच्छा हुई वो खाने की या एंजॉय करने की तो कर लीजिए, कर लीजिए, उसमें कोई गुनाह नहीं है। बहुत बार हम ना वेदों में या स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए शब्दों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं और खुद को पनिशमेंट जैसा टॉर्चर करते हैं। और बुद्धा ने भी कहीं ये लिखा है कि आफ्टर ऑल ऑस्टेरिटीज भी उन्हें वो पद नहीं मिला जब तक उन्होंने मिडिल पाथ नहीं लिया। तो कभी कभी इन लोगों के अनुभव से हमें भी सीखना चाहिए कि मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ। The reason I have used the word genuine is because there are any number of people who, with or without great fanfare and drama, take to becoming monks only to quietly revert to normal life of a few misguided years later. गुरुजी ये क्यों कह रहे हैं कि सच्चा संन्यास बहुत कम लोगों को नसीब होता है? क्योंकि उन्होंने देखा है जबरदस्ती संन्यास लेके मन में ही मन में लोग तड़पते हैं या फिर धीरे से नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि उसको धारण करना, उसको निभाना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि वो प्रीमैच्योर है, वो बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ है, तैयारी के साथ नहीं लिया है। इमोशंस में आके, बहकावे में आके कभी कभी ना हम
ना कूद जाते हैं किसी चीज में या कमिट कर देते हैं, और बाद में जब वो धारण नहीं कर सकते या उसको निभा नहीं सकते तो हम ना अंदर से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसकी जरूरत ही नहीं है, गुरुजी बोलते हैं ऐसा दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है। संन्यास कभी भी लेना नहीं पड़ता, इसीलिए मैं बार बार ये वाक्य उपयोग कर रही हूँ। संन्यास लेना नहीं पड़ता है, वो आ जाता है अपने आप से, क्योंकि मन से ही वो तृप्ति आ जाती है जब आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं पड़ती या किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब तक एंजॉय इन लिमिट। Those who become public figures and spiritual religious leaders lead a notoriously indulgent life in private. जब ये संन्यास दिखावे के लिए लिया जाता है, जब ये संन्यास प्रीमैच्योरली लिया जाता है, तब ना वो हैंडल नहीं होता है, और फिर हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि कितने सारे स्कैंडल्स हो जाते हैं। सो कॉल्ड ना ऐसे ना बड़े बड़े नाम जो है वो बाद में मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाते हैं, या फिर सेक्सुअल स्कैंडल्स में आ जाते हैं, या फिर दे आर एक्चुअली लिविंग सच लैविश लाइफस्टाइल विच इज अ रीजन ऑफ कंसर्न एंड सरप्राइज बोथ। क्योंकि जब छोड़ दिया है तो कुछ भी पकड़ना नहीं पड़ता है, तो इतना साम्राज्य किस लिए, इतना सब बड़ा बिजनेस बनाने का जो एक ना कहते जुनून है वो किस लिए? क्योंकि संन्यास जब आता है तो वो बहुत ही सुंदर अवस्था होती है। तो इस तरह से खोखला संन्यास हम बहुत देखते हैं, और ब्रह्मचर्य ले तो लेते हैं, निभा नहीं पाते हैं, और फिर गलत हरकतें हो जाती है। तो इसीलिए गुरुजी बोल रहे हैं ऐसा सब करने की जरूरत ही नहीं है। कहाँ किसी ने लिखा है कि ब्रह्मचर्य के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती? जबकि कितने सारे साधु संत ऋषि मुनि फैमिली वाले थे, वैवाहिक जीवन व्यतीत करने वाले थे, उन्होंने भी हाईएस्ट जो स्टेट है वो पा लिया था। तो ढोंग करके कुछ भी करने की या जोश में आके कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब वो छूट जाएगा, छूट जाएगा, उसका समय आने दीजिए। Then what is inner detachment and why is it so important to inculcate for a fulfilled life? फिर गुरुजी बोलते हैं कि ये फिर इनर डिटैचमेंट क्या है और क्यों इसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम एक तृप्ति भरा, एक समाधान भरा लाइफ जी सके। One word that would probably describe it best is vairagya, not sannyas, vairagya. Many are afraid of this word because they associate it with empty lives, poverty, struggle for existence and complete absence of feelings. इस शब्द को भी हम लोगों ने बहुत ही मिस इंटरप्रेट किया है, उसको हमने ठीक से समझा नहीं है। वैराग्य यानी लोगों के सामने आता है एक भिखारी जैसा साधु पड़ा है रास्ते पे, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, आंखें मूंद के बिल्कुल पावर्टी में कुछ सुख सुविधा नहीं है उसको, और इस तरह से वो जीवन बिता रहा है। तो वो सोच के डर लगता है और हम लोग भागते हैं। फिर वैराग्य वगैरह नहीं चाहिए। इनफैक्ट वैराग्य नहीं आए या फिर लोगों को ये भी डर मैंने देखा है, अगर घर में कोई आध्यात्मिक साधना कर रहा है तो लोगों को ये पहला डर आ जाता है इसमें वैराग्य आ गया, ये छोड़ छाड़ के चला गया, या हमारे में जो इसका इंटरेस्ट है वो अगर खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे। ये बिल्कुल गलत धारणा है। आप ये डर निकाल दीजिए कि ऐसे कुछ होता है। गौतम बुद्ध की स्टोरी से शायद ये डर हमें उभर के आया है कि वो फैमिली इतनी सुंदर पत्नी अपने बच्चे को छोड़ के, जब इतना राजपाट सब छोड़ के वो चला गया, यानी कोई भी इंसान ऐसा कदम ले सकता है? नहीं, वो स्टेज आने में काफी जन्म हमें लेने होंगे। ऐसा लाखों में एक होता है जिसको कोई भी मोह पीछे नहीं रखता है। हमारे बहुत मोह है अभी भी, और ढूंढ करके या फिर जबरदस्ती इसमें से बाहर आने की जरूरत नहीं है। लेट अस एंजॉय वॉट एवर वी आर गिवन बाय लाइफ। सो वैराग्य यानी इसका अर्थ ये नहीं है कि गरीबी में जीना, दुख में जीना, खुद को परेशान करके रखना, बिल्कुल नहीं। नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। गुरुजी बोलते हैं इसका अपोजिट ही है। वैराग्य इज नन ऑफ द अबव, ऑन द कॉन्ट्ररी, it is that singular quality in a human that can,
to a large extent guarantee happiness and a peaceful mind regardless of difficult external environment. गुरुजी बोलते हैं ये इतनी सुंदर क्वालिटी है, एक इंसान के अंदर अगर डेवलप हो जाए तो किसी भी परिस्थिति में वो इंसान हिलेगा नहीं, उसका आनंद, उसका उसकी तृप्ति, उसका समाधान कम नहीं होगा. अब ये सोच के भी कितना अच्छा लगता है कि यही तो हम चाहते हैं जिंदगी में. हम क्या चाहते हैं आखिर? कि हम कहीं ना कहीं हम तृप्त रहे, कहीं ना कहीं हम खुश रहे और ना समाधान पूर्वक हमारा जीवन बिता रहे, जिसमें कोई परेशानी नहीं हो. तो उसके लिए ये वैराग्य डेवलप करना वो बहुत ना इसेंशियल है. अ लिटिल एलैबोरेशन विल मेक इट क्लियर. यहाँ पे गुरुजी और थोड़ा सा इसको विशद करके बता रहे, इसको खोल के थोड़ा सा समझा के बता रहे हैं. Inner detachment is how deep within your heart you see and understand your life, this world, your relationships and your material possessions. I think ये एक टॉपिक हो सकता है हम सबके लिए इंट्रोस्पेक्शन का, जब तक कि मैं नेक्स्ट ना अमृत रीडिंग के लिए आपके सामने ना आऊं. मुझे भी शायद ये करना पड़ेगा. आप सबको ये रिक्वेस्ट है कि आप आपकी तरफ देखिए, आपके लाइफ की तरफ देखिए, आपके रिलेशनशिप्स की तरफ देखिए, आपके जो मटेरियल पोजेशंस है उसकी तरफ देखिए. द मोर इग्नोरेंट अबाउट यू आर अबाउट द वे लाइफ फंक्शंस ऑन दिस प्लैनेट, and the more closely you cling to people, possessions and wealth, the greater is the potential for hurt, pain, sadness being your constant companion in your life. तो आप आपके तरफ देखिए, आप किस चीज को इतना अपना मान के बैठे हैं, इतना पॉजेसिव हो गए कि शायद वो दूसरे ने छू भी ली तो आपको लगता है नहीं नहीं ये मेरी है, या फिर किसी ने मांग ली तो लगता है कि मैं दूं या ना दूं. इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी देखना है कि आप किससे कितना मोह रखते हैं, किससे कितनी आसक्ति रखते हैं, या फिर मटेरियल पोजेशन से या जीवन से भी कितनी आसक्ति है. इतना डर हमें आ जाता है मौत का कि वो भी एक डर ही है. तो इस तरह से इंट्रोस्पेक्ट करना है कि किस किस चीज को खोने का डर है, या किस किस चीज को हम बिल्कुल पकड़ के बैठे अपना मान के, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है हमारे सारे दुख की, हमारे सारे परेशानियों की और हमारे सारे फ्रस्ट्रेशन की. हर्ट, पेन, सैडनेस कॉन्स्टेंटली रहेंगे. जितना आप ज्यादा पॉजिटिव बनेंगे उतना दुख ज्यादा ज्यादा निर्माण होता जाएगा. आई नो, आई अंडरस्टैंड, दिस इज मच इजियर सेड देन डन. मुझे पता है कि ये बोलने में बहुत सिंपल है लेकिन प्रैक्टिस में लाने में बहुत कठिन है. लेकिन शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी ना. छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं. जब डर निकल जाएगा उससे तो हम बड़ी चीजें भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. लेकिन एक लिस्ट, एक इंट्रोस्पेक्शन बनता है कि मेरा लाइफ की तरफ देखने का नजरिया क्या है, मैं जीवन से कितना आसक्त हूँ, या इन चीजों से कितना आसक्त हूँ, या लोगों से कितना आसक्त हूँ, किस किस को खोने का डर है मुझे. शायद वहीं से हम लोग आगे ना अध्यात्म को समझ पाएंगे अलग अलग नजरिए से. टू प्रिवेंट दिस अनवांटेड कंपेनियंस फ्रॉम शेयरिंग एंड डिस्टरप्टिंग योर लाइफ, ये अनचाहे मेहमान, दुख, तकलीफ, दर्द जो हमारे जीवन में घुस आते हैं, you must fully comprehend what it means to take a human birth and exactly how you should view and feel about your relationships with every person you encounter in your life. अगर ये अनचाहे मेहमान आपको आपके जीवन में नहीं चाहिए तो आपको ये अच्छे से समझना है आपके दिल के अंदर, आपके मन के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर, कि आपको किस तरह से आपके जीवन में आने वाले हर रिश्ते को देखना है, समझना है और उनसे व्यवहार करना है. And also understanding that wealth, money and material possessions should mean in the creator's scheme of things. इसी तरह से ये जो भौतिक सुख सुविधा है, संपत्ति है, जो भी हमारे मटेरियल पोजेशंस है, वो एक विधाता की नजर से अगर हम देखें तो काफी कुछ हम
ना इसमें समझ सकते हैं। तो किस तरह से देखना है? एन एग्जाम्पल इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस सिंपल कंसेप्ट। गुरुजी बोलते हैं कि किसी भी चीज को अगर उदाहरण के साथ समझाया जाए तो बहुत जल्दी से समझ में आता है। अब जो भी मैं बताऊंगी मैं बहुत दिल से बताने वाली हूँ, क्योंकि ये भी मैंने अनुभव किया हुआ है। और आप भी मन से, दिमाग से नहीं, दिल से सुनिएगा, क्योंकि वहीं पे सारा रियलाइजेशन होता है। गुरुजी बोल रहे हैं, अज्यूम यू हैव बुक्ड एंड पेड फॉर अ हॉलीडे पैकेज इन अ 7 स्टार होटल। आप कल्पना कीजिए कि आप विश्व के सबसे महंगे, सबसे शानदार ना एक पिकनिक हॉलीडे के लिए आपने बुकिंग किया है 7 स्टार रिसोर्ट में। सबसे बढ़िया जो आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसे जगह पे आप पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले हैं। आपने बुकिंग वगैरह कर लिया है, आपने तैयारी कर ली है। एज सुन एज, एंड ये जो होटल है, ये जो रिसोर्ट है, वो दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीप पे, आइलैंड पे है, जहां पे हर मुमकिन सुख सुविधा आपके लिए तैयार है, आपके लिए वेट कर रही है। So as soon as you reach your destination, you will be warmly greeted at the reception. आप जैसे ही इस रिसोर्ट में, इस होटल में पहुंचते हो, आपको बड़े ही सम्मान से, बड़े ही ना वार्म से, कर्टियस जैसे कहते हैं ना, पूरे ना आव भगत से आपका स्वागत किया जाएगा। और आपको आपके शानदार रूम की चाबी आपको दी जाएगी, आपका रूम भी दिखाया जाएगा, जिसमें हर सुख सुविधा, जितना कि आप सोच सकते हो लग्जरियस, उतना शानदार व्यवस्था उस रूम में पूरा आपके लिए वेट कर रहा है। थ्रू आउट द वीक यू हैव द टाइम ऑफ योर लाइफ एंजॉइंग द फैसिलिटीज एट द रिसोर्ट। एक हफ्ते भर आपका वहां पे रुकना है, आपका स्टे है, और जी भर के हर सुख सुविधा का आप आनंद लेते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं है। सो जो भी फैसिलिटीज वहां पे है, आपने सबका आनंद उठाया है, लुफ्त उठाया है। मे बी इट स्विमिंग, रेस्टोरेंट है, स्पा है, जिम है, वाटर स्पोर्ट्स है, लैंड स्पोर्ट्स है, यू नेम इट एंड यू हैव इट एट योर डिस्पोजल। जो भी ना वहां पे सुविधा है, आपने एंजॉय कर ली है। आप वहां पे नए दोस्त भी बना लेते हो, जो भी वहां पे आए हैं, तो उनके साथ भी आप हंस खेल लेते हो, ना मजे कर रहे हो। मे बी ना एंड ऑफ द वीक यू पैक योर बैग्स। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, हर पिकनिक कभी ना कभी खत्म होती है। हम लाइफ टाइम के लिए पिकनिक नहीं मनाते हैं, कभी ना कभी वो खत्म होती है। 7 दिन हो गए, आपको बिल्कुल दुख नहीं होता है। यू आर इनफैक्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू गो बैक होम। थोड़ा सा लगता है कि ये ऐशो आराम शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन घर आने की भी उतनी ही हमें, कहते हैं ना, चाह रहती है, एक एक खिंचाव सा रहता है, अब घर जाना है, कितना भी सुख सुविधा हो। तो 7वें दिन आप आपके बैग्स पैक कर लेते हैं, आपके जो वहां पे दोस्त बने उनको सबको बाय बाय कर लेते हैं, फोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, अच्छी यादें आप संजो के ना अपने पास रख लेते हैं। शायद आपने बहुत अच्छा रिव्यू भी लिख डालते हैं उनके किताब में कि मैंने सब कुछ एंजॉय किया, पूरी व्यवस्था एकदम टॉप क्लास थी, और कहीं भी इतनी सी भी मुझे असुविधा नहीं हुई। इस तरह से सबको धन्यवाद करते हुए आप टिप भी दे देते, जो सर्विस स्टाफ था जिसने आपकी इतनी अच्छे से देखभाल की, जो भी चाहिए था बिल्कुल हाजिर हो गया था आपके लिए। सबको आपने टिप दे के, सबको बाय करके, थैंक यू बोल के, नाउ बहुत सारे मेमोरीज और बहुत सारे फोटोग्राफ्स के साथ आप घर वापस आ जाते हैं। एंड मन में कहीं ना कहीं तरह आप पक्का कर लेते हैं कि अगले साल या कभी ना कभी फ्यूचर में वे वापस इसी होटल में आऊंगा। नाउ दिस इज एग्जैक्टली द एटीट्यूड यू नीड टू हैव अबाउट योर लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ। क्या आप सोच सकते हैं? क्योंकि इसके लिए आपको अलग तरह से देखना पड़ेगा जीवन के लिए। ये भी अभी हमने खराब कर दिया है प्लैनेट अर्थ को, लेकिन ये भी एक शानदार होटल है, शानदार रिसोर्ट है, इतना खूबसूरत, इतने पेड़ पौधे, इतने पशु पक्षी, इतने सीनिक ये प्लैनेट अर्थ है। यहाँ पे हमें आने को मिला है, यहाँ पे हमें जन्म लेने को मिला है।
गुरुजी बोलते देवता तक तरस जाते हैं यहाँ पे आने के लिए, वो भी यहाँ पे आना चाहते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं जहाँ पे हमें भेजा गया, या फिर भेजा नहीं गया, रादर हम लोग आए हैं पिकनिक पे, तो हम ही आते हैं ना, कोई जबरदस्ती नहीं भेजता है। तो हमने ही इस पिकनिक का नियोजन किया था और अब हम यहाँ पे आ गए हैं। सो पहला जो दृष्टिकोण है बदलना चाहिए आपको जीवन की तरफ देखने का। बहुत जीवन के प्रति बहुत सैड सॉन्ग्स लिखे गए हैं, पता नहीं कौन से मूवी का कि जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ओ माय गॉड, आई थिंक दैट्स कंप्लीटली इनजस्टिस टू द एक्सपीरियंसेस that planet can offer. That's a completely wrong perception to look at planet Earth and the life in general. Life is no punishment. In fact, अगर आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो ये अभी इंसान के मन का ना ये प्रॉब्लम है, हमें सुख के क्षण याद नहीं आते हैं। एक भी जीवन पृथ्वी पे ऐसा नहीं है जिसको दुखी दुखे दुखी दुखे दुखी दुखे और सारे टाइम दुखी दुख है। बहुत होंगे, एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी की बात करते हैं अगर, तो हम वहां पे दुख के मौके बीच बीच में आते हैं, उसमें सुख के मौके भी रहते हैं और बहुत सारा न्यूट्रल टाइम रहता है। तो इस तरह से अगर आप पूरे लाइफ को ही लेबल लगा दो कि ये पेनफुल है, ये पनिशमेंट है, ये ये गलत है, मुझे सजा मिल रही है, तो आपको उसी तरह से फिर अनुभव होंगे। अगर आप आपका नजरिया बदल के देखें कि ऐसे सुंदर पृथ्वी पर जहाँ पे हर मुमकिन एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, हर सुख सुविधा का आनंद ले सकते हो, तो आपका नजरिया लाइफ की तरफ बदल जाएगा और उससे आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। तो ये जहर नहीं है भाई लोगों, बिल्कुल भी नहीं है, ये अमृत है और इसको पीने से आपको अच्छे अनुभव ही आएंगे। नजरिया गलत हुआ तो गलत ही दिखेगा। Okay, consider this. Did you at any point of time assume that the room allotted to you at the resort was your own personal property, although you had the exclusive right to use it for a week? अब गुरुजी बोलते दुख कहाँ से शुरू होता है इंसान के लाइफ में, क्योंकि वो खुशी से अटैच हो जाता है, एक्सपीरियंस से अटैच हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, आइसक्रीम अच्छी लगी तो मुझे रोज ही चाहिए। अब रोज कैसे आइसक्रीम, और वो अच्छी भी तो नहीं है, तो अटैचमेंट हो गया, तो जिस दिन नहीं मिला उस दिन दुख का हो गया। तो प्रॉब्लम आप बताओ, प्रॉब्लम हम में है या लाइफ में है? लाइफ तो हर तरह के एक्सपीरियंस लेके आती है, लेके जाती है, अलग अलग तरह से हमें एंजॉय करने के मौके देती है, लेकिन हम हैं कि मुझे एक ही चीज चाहिए करके पकड़ के रहते हैं, और यहीं से सारी दुख भरी दास्तान शुरू हो जाती है। जबकि अगर हम नजरिया सही रखें और हमारा व्यवहार सही रखें तो हर क्षण आनंद ही आनंद है। हाँ, थोड़ा बहुत दुख आएगा तो वो भी कहीं ना कहीं हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हर क्षण कोई दुख नहीं है, हर क्षण कोई परेशानी नहीं है। ये हम दिमाग में बना लेते हैं और फिर लाइफ वैसे दिखने लगता है। तो जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि इस रिसोर्ट में जब आप रुके थे तो क्या होटल रूम को कभी आपने अपनी प्रॉपर्टी माना? नहीं माना। तो उसी तरह से इस जीवन में भी जो कुछ भी आपको दिया गया है वो थोड़े दिन के लिए दिया गया है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जब तक है आप एंजॉय करो, जब छोड़ के जाना ही है तो इससे मोह कैसा, इसको पकड़ के रखने की इच्छा क्यों, ये छूट जाएगा ये डर क्यों? Did you at any point during your stay think that the furniture, fixtures, amenities in the room and hotel belong to you and were in pain to leave it behind? कभी आपको ये दुख हुआ कि अरे ये मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ? नहीं, इनफैक्ट आपको तो घर जाने का कहते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इच्छा हो रही थी कि नहीं, कितना भी अच्छा मुझे मेरे घर जाना है। तो होटल कितना भी अच्छा लगे, एक क्षण आता है कि वो सुख सुविधा हमें इतना अट्रैक्ट नहीं करती है। इनफैक्ट अगर आपको बताऊं, ये जो 5 पंचेंद्रिय होते हैं एक्चुअली वो बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाते हैं। पहला अनुभव हमेशा माइंड ब्लोइंग रहता है, पहला अनुभव। जैसे मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन स्विस चॉकलेट दिया है आपको खाने के लिए, बहुत इतना बड़ा बार है, आई विश
आई एम रियली लॉन्गिंग टू बाय वन। लेकिन आप इमेजिन ही कर लो अभी के लिए कि आपको बेहतरीन स्विस चॉकलेट ऑफर हुआ है, गुरमे, एकदम लाइक ना स्पेशलिटी। पहला बाइट, उसका जो आनंद है, अगर आपको किसी ने बोला ये पूरा खत्म करना है एक ही सिटिंग में, हर बाइट के साथ आपका आनंद कम 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 होता जाएगा। इनफैक्ट लास्ट के फ्यू, वो तो आपको लगेगा कि यार मैं नहीं खाऊं तो अच्छा है, शायद मैं उल्टी कर दूं अभी, प्यूक। ऐसे होते हैं अनुभव, जिन अनुभव से हम इतना आसक्त होते हैं, कहीं ना कहीं अगर तृप्ति आ गई तो वही अनुभव हमें दर्द देना शुरू कर सकते हैं। जो चॉकलेट पहले बाइट में सुख था, आखिरी बाइट तक दर्द बन जाता है। तो इसके मोह में रहना कितना उचित है। छोटा सा ही बाइट काफी है हम लोगों के लिए, लेकिन मोह में, लोभ में हमें पूरा चाहिए, लेकिन पूरा हजम नहीं होता है और वहीं दर्द शुरू हो जाता है। फिर चलो वो भी ठीक है, एक बार खा लिया, अब मोह में और चाहिए, रोज चाहिए। इस तरह से फिर जिस दिन नहीं मिला, हम रोना पीटना शुरू कर देते हैं। सो लाइफ को लाइटली लो, जो मिल रहा है एंजॉय करो, जो नहीं मिल रहा उसकी राह देखो, मेहनत करो, राह देखो, आ जाता है तो आपका है, नहीं तो बाद में मिल जाएगा। लेकिन हर एक इंसान इसी ना तकलीफ से गुजर रहा है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। क्या बात कही है गालिब साहब ने, क्या बात कही है। हजारों ख्वाहिशें इंसान की, और हर ख्वाहिश पे तो दम निकल रहा है पूरी होने होते। इतनी इजीली हो जाती है क्या ख्वाहिश पूरी? मन में आ गया और मिल गया। तो हजारों ख्वाहिश अगर पूरी करनी है तो दम निकलता है पूरी करते करते। और बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले, यानी हजार ख्वाहिशें भगवान ने पूरी भी कर दी तो भी और आ जाती है। इस चक्कर में जितनी हमने पूरी की उसका भी कहीं लेखा जोखा हम नहीं रखते हैं, सिर्फ जितना नहीं मिला उसको पकड़ के दुख मनाते हैं। कितना इनजस्टिस, कितना कहते हैं लाइफ के साथ हम इनजस्टिस कर रहे हैं, लाइफ को दोष देके, भगवान को दोष देके, इस सिस्टम को दोष देके। एक्चुअली प्रॉब्लम हम में है। मैं तो कितनी बार गुरुजी से भी बोल देती हूँ कि भगवान को भी इंसान को खुश रखना पॉसिबल नहीं है। भगवान भी नहीं ये अटेम्प्ट कर सकता इंसान को खुश रखना, क्योंकि कितना भी वो दे फिर भी उसको और चाहिए, और ये नहीं है करके वो रो सकता है। इसलिए वो अटेम्प्ट ही नहीं करता। वो एक फनी बात है, वो अटेम्प्ट ही नहीं करता है। वो आपके नसीब से, आपके मेहनत से, आपके उस लाइफ के जितने अलॉटेड एक्सपीरियंस है वो शांति से देखता रहता है। तो आप भी यही समझिए कि ऐसी तो ख्वाहिशें बहुत रहेंगी, लेकिन जितनी पूरी हो जाती है उसका आनंद मन में बसा के रखिए। जो नहीं मिला उसका दुख मन में बसाया तो ये नाइंसाफी है, क्योंकि थोड़ा, किसी की सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। और थोड़ी बहुत अधूरी रह जाए तो अधूरेपन में भी एक मीठा सा आनंद है, क्योंकि वो पूरे करने के लिए हम फिर कोशिश करते, देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अगर हर चीज को हम पॉजिटिवली देखें तो हर चीज में बड़ा आनंद है, नहीं तो दुख ही दुख है। So did you weep and suffer because you had to part with the new friends, or no, you suffered the pain of separation from the staff that was attending to you? नहीं। जिन लोगों के साथ 7 दिन आप इतने हंसे खेले, एंजॉय किया, उस स्टाफ ने जितने अपने परिवार की तरह आपकी देखभाल की, क्या आप उनको छोड़ते हुए रोते हैं? नहीं। फिर आज अपने असली जीवन में अगर कोई छूट गया तो उसके लिए कितना रोना पीटना मचता है। अभी फेसबुक पे ही आप देख लो ना। आई एम नॉट सेइंग कि एनी डेथ इज लाइक ना इज नॉट हैप्पी, आई वुड से हैप्पी, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कितना मॉर्निंग करना है, कितना दुख मनाना है। इनफैक्ट जो भी आध्यात्मिक रहता है ना, वो कहता है जन्म लेते बच्चा इसलिए रोता है कि उसको दिखता है हाय राम अभी क्या जिंदगी है आगे, और जब मौत होती है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती कि छूट गया यार इस झमेले से। तो ये है,
नजरिए का फर्क। सो जहां पे बाय बाय करने का वक्त आता है, जहां पे कोई छूट जाता है, बी वेरी वेरी डिग्निफाइड, मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग। जितना जन्म नेचुरल है उतनी ही डेथ भी नेचुरल है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी, हर एक को आनी है, हर एक को आनी है। उसका कितना मातम मनाना है उसका। जैसे कि ना लोग ऐसे बिहेव कर जाते हैं कि ना पूरा वर्ल्ड हैज कम टू अ क्रैशिंग एंड। क्यों? यही इग्नोरेंस निकालना गुरु का काम है, क्योंकि ये इस इग्नोरेंस में हम सफर होते हैं। इस नाटक के किरदार से हम इतना प्यार करने लगते हैं, इतना मुंह में फंस जाते हैं कि नाटक खत्म होने के बाद भी हमारा दर्द शुरू ही रहता है। वो जो एग्जिट मार के चला गया कलाकार, वो शायद दूसरे ड्रामा में दूसरा रोल चालू भी कर दिया है, और हम उसके रोल को यहाँ पे पकड़ के रोए जा रहे हैं, मातम मनाए जा रहे हैं। अब इस दुख का कोई क्या करे, ये भगवान भी नहीं निकाल सकता, ये आपको आपकी समझदारी से निकालना है। इसीलिए गुरुजी इतना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि जैसे होटल में जाते हैं आप 4 दिन के लिए मेहमान हैं, वैसे ही पृथ्वी पे आप शायद 80 साल के मेहमान होंगे, लेकिन मेहमान ही है, ये हमारा घर नहीं है। यहाँ पे थोड़े दिन का आना है, एक्सपीरियंस लेना है, सीखना है, सिखाना है, और हंसते हंसते जाना है। नजरिया बदलना है हर चीज को देखने का। जितना आपको अभी हंसी आ रही है कि कोई रोता है पीटता है, जैसे आप इमेजिन करो कि होटल से कोई जा रहा है और आप लोग उसके गले में, स्टाफ के गले में पड़ के रोए जा रहे हैं कि भाई मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगा। कितना फनी लगता है, उतना ही फनी साधु संतों को या भगवान को लगता है जब हम इस तरह के ड्रामे में ड्रामा शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा संभलिए, ये इमोशंस अंधा बना देते हैं। थोड़ा सा इससे बाहर आके आप इसकी तरफ देखने की कोशिश कीजिए। तो हर चीज जो दिल पे लगती है वो जरूरी नहीं है, वो सही नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, यू कम होम हैप्पी, रिलैक्स्ड एंड सेटिस्फाइड। आप घर इतने, यू लुक फॉरवर्ड टू गो होम। घर आके आप वो सारी मेमोरीज याद करते हैं, कितना मजा आया करके वो ना पूरा रिवाइव करते हैं, बार बार उसके बारे में बातचीत करते हैं। आप एक दिन भी नहीं रोते हैं, आप एक दिन भी परेशान नहीं होते कि मैं सब कुछ इतना लग्जरी छोड़ के आ गया हूं। सो दीज आर 2 reasons. One, you knew everything in that resort belonged to some company or people who owned it. गुरुजी बोलते हैं हमें दर्द क्यों नहीं हुआ होटल छोड़ते हुए, जबकि लाइफ में कुछ छूट रहा है तो हमें इतना दर्द क्यों होता है? क्योंकि जब हम होटल में गए तो पहले से हमें पता था कि ये मेरा नहीं है, ये किसी और का है। मैं कुछ दिन मैंने इसको पैसे देके यूज करने के लिए बुक किया है, ये मेरा है ही नहीं। जब मेरा है ही नहीं तो छोड़ने का गम कैसा? सो वुड बी इनसेन टू थिंक इफ इट्स योर्स। और कोई अगर ऐसे समझे कि ये होटल मेरा है, तो इसीलिए ये बात आपको अंदर ही अंदर पूरे पचानी है आपके दिल में कि दुख किसे होता है? जो मानता है कि वो मेरा है। जो मानता ही नहीं वो मेरा है, पता है बिना इस दुख के कि इसको छोड़ना पड़ेगा। आई होप इट्स मेकिंग सेंस। सेकेंड, you felt no pain at leaving friends and staff behind because you always knew they were here. You may never see these people ever again. इस जीवन में हमें 2 चीजों से बहुत ही ज्यादा तकलीफ और दुख होता है, वो है मटेरियल लॉस एंड लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप। जैसे समझो मेरी कार को एक्सीडेंट हो गया, या फिर मेरे घर को डैमेज हो गया, या फिर किसी ने मुझे फ्रॉड करके मेरे पैसे लूट लिए, या फिर कोई मेरा अपना चला गया। ये 2 चीजें इंसान को सबसे ज्यादा, उनको समझने का इस उदाहरण से और दे सकते, ये कोई भी नहीं दे सकता। आप होटल में यूज करने वाली सारी सुख सुविधा जैसे थर्ड पर्सन की तरह देखते, आप एक क्षण के लिए भी उन्हें अपना नहीं मानते। इसीलिए आप खुशी खुशी छोड़ भी सकते हो।
उसी तरह जो स्टाफ है उनसे आपको लगाव हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही स्वीटली आपसे बिहेव कर रहे हैं, आते जाते स्माइल देते हैं, लोग वहां पे मिलते हैं, लेकिन उनको भी आप छोड़ने का आपको दुख नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है पूरी तरह से ये भी 4 दिन का खेला है, बाद में हमें आगे जाना है, हमें अपने। तो ये उदाहरण हमेशा आपके सामने भी, अगर किसी भी चीज के खोने से आपको दर्द शुरू हो जाए, गुरुजी का ये उदाहरण आंखों के सामने लाइए, या गीता का ये प्रवचन है, तेरा क्या था जो तूने खो, तू क्या लेके आया था जो तू लेके जाएगा। ये इटर्नल ट्रूथ है, ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन कहते हैं ना, हम जब जन्म लेते हैं इंसान के रूप में, हमारे आंखों के ऊपर एक पट्टी बांधी जाती, इग्नोरेंस की या माया की, जिस कारण हम ये भूल जाते, ये तथ्य, ये सत्य। 4 फिर हर कोई अकेला है, अकेला आया है, कुछ लेके नहीं आया और कुछ लेके नहीं जाएगा। बीच में जो कुछ आया वो मेरा है, जो कुछ चला गया वो एंजॉय कर हो गया, वो वापस चला गया, जिसका था उसके पास चला गया। दैट इज एग्जैक्टली हाउ डिविनिटी wants you to think of your stay on planet Earth, क्योंकि डिविनिटी इस रिसोर्ट की मालिक है, ये डिविनिटी का है, आपका इसमें कुछ नहीं था। आपके लाइफ के इंसान भी डिविनिटी के स्टाफ मेंबर्स है, यहाँ की सारी सुख सुविधा डिविनिटी की है, भगवान की है, परमेश्वर की है। अगर ये पक्का मान लिया तो फिर क्या खोने का डर और क्या पाने का जुनून, सब कुछ एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस बन जाएगा बिना डर से। You do not own anything on this planet and never will. But like your hotel room, you are given temporary use of certain property and material possessions for a limited time. Everything belongs to the Creator. So why do you get so attached to something that you do not even own? ये जब सब कुछ उस परमेश्वर का है, उस ईश्वर का है, तो आप क्यों इतना अटैच होके दुखी हो जाते हो? आप एंजॉय करो, आप यहाँ पे हो, बस एंजॉय करो। Just as your hotel room is occupied by the next guest, यहाँ पे जैसे एक गया एक आ जाता है, हर चीज रिप्लेस हो जाती है, तो उसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। Inner detachment from wealth, property and material possessions does not mean becoming penniless, poor and kicking money out of life. यहाँ पे भी गुरुजी वार्निंग दे रहे हैं, क्योंकि गलत मतलब निकाल लेता है इंसान। तो डिटैच होना यानी धर्म खड़े होना नहीं है। जो भी आ रहा है स्वीकार करो, जो भी जा रहा है स्वीकार करो, बीच में आपको जितना बन पड़ता है आप एंजॉय करो, जब तक वो चीज आपके पास, बस इतना ही इसका महत्व है। इट मीन्स दैट ऑल फॉर्म you have inherited or worked hard to collect it are given to you by the universe to enjoy for a certain time. कभी कभी हमें ये भ्रम हो जाता है कि ये मैंने कमाई है, ये मैंने खरीदी है, ये मैंने अपने मेहनत से पाई है, या फिर किसी ने आप भेंट दी है। नजरिया कोई भी हो, चीज उसकी है, आपको थोड़े दिन के लिए मिली है, आप एंजॉय करो, और जब जाने का वक्त आए, universe to enjoy for a certain time. So enjoy it with passion, look after it. When it ceases to be yours, don't cry. It was never yours to start with. So जो भी चीजें आपको मिली है उसको रिस्पेक्टफुली यूज करो। हम देखते हैं ना, कैसे नहीं तो इंसान ऐसा ही है। इतना सुंदर प्लैनेट, इतना सुंदर, गुरुजी बोलते हैं कि शायद हम लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे एक 600-700 साल पहले की पृथ्वी, 600-700, और उससे आगे तो और भी ज्यादा प्रिस्टीन थी। कहते हैं पानी भी अमृत की तरह टेस्ट होता था कभी। आज हम पानी के आता है घर में, बॉइल्ड वाटर, डेड वाटर, उसकी क्या टेस्ट।
ये थे प्रिस्टीन, जैसे अमृत, एक मिठास होती थी पानी में। इतने लग्जरियस होटल में आके हम उसको बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन कोई फाइन नहीं दे रहा है। शायद इसलिए अभी फाइन लगाया है हम लोगों के ऊपर, बैठो घर में, थोड़ा सा रिपेयर वर्क जारी है, बहुत ज्यादा डैमेज हो गया होटल। सॉरी, इट गॉट डिस्कनेक्टेड फॉर सम टाइम। ये स्वभाव, ये आदत, सोचने का नजरिया डेवलप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये नजरिया आपने डेवलप नहीं किया या बार बार खुद को रिमाइंड नहीं किया, तो या तो आप बहुत ग्रीडी बन जाएंगे, बहुत पॉजिटिव बन जाएंगे, या जिसके पास है उसके प्रति जेलसी आपको आएगी, और इसमें आप बहुत सारा नेगेटिव कर्मा कर सकते हैं, बहुत सारा दुष्कर्म आपसे हो जाएगा, आप जबरदस्ती छीन लोगे लोगों से, या फिर हर दम दुखी, परेशान और मायूस रहोगे, या फिर कोई चीज चली जाती है तो आप बिल्कुल दिल पे लगा के पूरा लाइफ दुख मना के रह जाओगे, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए गुरुजी बार बार ये बोल रहे कि ये स्वभाव डेवलप करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आप ध्यान कितना लगाओ या जाप लाखों बार कर लो, कोई मायने नहीं रखता जब तक ये बेसिक क्वालिटीज हम डेवलप नहीं करते, तब तक बाकी के सारे बोलने और दिखाने की चीज है। बदलाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। You cannot hurt for what is not yours. At the same time, you live and function normally in this world without having to go through the pangs of renunciation or monkhood to learn this simple lesson which ultimately you have to. तो गुरुजी बोल रहे हैं कि बस ना, इसको छोड़ के भाग के जाने की क्या जरूरत है। वो आप सब साथ होते हुए भी आप इसी वैराग्य का अनुभव कर सकते हो। सब कुछ आपके पास है, आप एंजॉय भी कर रहे हो और आपको खोने का डर भी नहीं है। और इससे ज्यादा रिनाउंसिएशन होता क्या है। कहीं किसी आश्रम में खुद को बंद करने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी जंगल में या गुफा में छुपने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये मैंने बार बार गुरुजी से पूछा है, सारे जो टेस्ट होते हैं आपके, वो इसी संसार में होते हैं। आप भाग के गुफा में जाओगे, 10 साल आपको लगेगा कि आपको अभी कोई मोह नहीं है, क्योंकि कुछ मोह में आपको डालने वाली चीज ही वहां पे नहीं है। समझो मैंने आइसक्रीम खाया ही नहीं है 10 साल से, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा जो डिजायर है या मेरा जो मोह है उसमें से चला गया है। मेरे सामने इतना बड़ा टब लाके रखो और फिर देखते हैं कि वो मुझे कितना मोह में डालता है। तो ये संसार में रह के ही आप आप खुद को और अच्छे से टेस्ट कर सकते हो कि कितना आपने प्रोग्रेस किया, कितना ये नजरिया डेवलप हुआ है। क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा का हर समय मौका देता रहता है, वो चीजें देगा भी और छीनेगा भी। सारे एग्जाम होते रहते, डे टू डे होते रहते, हमें पता नहीं चलता, हम रोते पीटते रहते, उसमें एग्जाम होके फेल हो गए ये भी पता नहीं चलता। अब की बार दुख के किसी भी अंदेशे से, दुख के थोड़े से भी फीलिंग से आपकी आंखें खुलनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्यों मुझे पेन आया है, क्यों। और वहीं से शुरू होती है इंक्वायरी, और वो इंक्वायरी आपको सही उत्तर तक पहुंचा देगी। लेकिन 50, 60, 70% जो पेन है वो इस अटैचमेंट से, इस मोह से कि ये है और मुझसे छिन गया तो मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ। तो वहां पे पेन को आते ही एंटेने ऊपर होने चाहिए कि ये क्यों आया, ये क्यों आया, मेरे अंदर है जो अभी तक गई नहीं है, इसीलिए वो पेन उत्पन्न कर रही है अंदर से। पेन का कारण बाहर होता है, नहीं, निमित्त बाहर होता है, कारण अंदर होता है। नाउ द सेम इनर डिटैचमेंट विद पीपल is little more difficult because we have lot of complex and complicated emotions with people. गुरुजी ये जानते हैं कि एक बार मटेरियल चीजों से आप दूर हो सकते हो, लेकिन अपने प्यार करने वाले, अपने करीबी लोगों से इस तरह से ना वो एक्सेप्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि हमारी जो भावनाएं हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो थोड़ी मुश्किल है। इसीलिए वहां पे थोड़ा और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग,
ऑल्सो वी लिव विथ सम वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल कंडीशनिंग अबाउट रिलेशनशिप्स। और यहाँ पे जिस तरह से हमारा अपब्रिंगिंग होता है, जिस तरह से हमें ही नजरिया पा लेते हैं रिलेशनशिप्स को देखने का, क्योंकि हम आसपास के लोगों को देखते रोता पीटता हुए ना, वो धारणा बैठ जाती कि अच्छा कोई चला जाता है तो इस तरह से दुख होना चाहिए, ये इस तरह से रोना पीटना चाहिए। प्लीज रिमेंबर, every soul is on their own individual journey of growth, and your being in a certain relationship is to mutually facilitate taking experiences and learning lessons in this earthly expression. Since we cannot come onto this planet, गुरुजी, हर आत्मा जो इंसान का जन्म लेके पृथ्वी पे आती है, वो अपने अपने यात्रा पे है, अपने अपने न जीवन यात्रा पे है। आपका एक साथ होना, ये एक कहते हैं ना म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, एक करार बोल सकते हैं आप, कि मैं आपसे कोई एक्सपीरियंस ले लूंगी, आप मेरे से कोई एक्सपीरियंस ले लेंगे, मैं आपसे कुछ लेसन सीख लूंगी, आप मेरे से कुछ लेसन सीख लीजिए। तो इस तरह से ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, एक ना एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए। लेकिन गुरुजी बोलते एक बात ये भी तो है कि हम यहाँ पे ऐसे ही नहीं आते ना, हम जन्म से ही रिलेशनशिप में बन के आ जाते हैं, हम रिश्ते नातों में बन के आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसी सुविधा नहीं है कि बिना वूम के हम जन्म ले पाए। जब वो प्रोग्रेस होगी तब शायद रिलेशनशिप्स का मायने ही बदल जाएंगे। लेकिन आज हम ना गर्भ से जन्म लेते हैं, तो जन्म से ही माता पिता भाई बहन सब जुड़ जाते हैं, और फिर उनसे उनके प्रति देखने का नजरिया भी हमें ना वो उन्हीं से मिलता है, जो कि क्लाउडेड, यानी जो जो इग्नोरेंस में है, जो माया माया से है। तो इसीलिए दुख में वो भी लोग रहे हैं और दुख में हम भी लोग रहेंगे, अगर जब तक ये कंडीशनिंग, ये संस्कार नहीं धुलते हैं तब तक। All these relationships you cling to and hurt over are time bound contracts, and like the friends and staff at the hotel resort, you may never meet them again. चंद दिनों का ये साथ है, फिर आगे तो आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। जैसे उस होटल में जो स्टाफ था वो कुछ ही दिन के लिए मेरे साथ था, उसके बाद से हम दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाएंगे। उसी तरह से हर रिश्ता नाता जो आज हमारे साथ है, वो सिर्फ इस लाइफ टाइम तक ही सीमित है, इस लाइफ टाइम में भी कुछ सालों तक सीमित है। और जो जा रहा है उसको ना रिस्पेक्टफुली विद ग्रेटिट्यूड जाने देना चाहिए, जो आ रहा है उसको खुशी खुशी वेलकम करना चाहिए, जो डिफिकल्ट वाला है उसको अलग अलग तरीके से सुलझाना चाहिए, जो खुशी वाला है वहां पे अटैच होने से बचना चाहिए, क्योंकि वो रिश्ते ज्यादा मुंह में डालते हैं, वहां से फियर ज्यादा आता है। तो दोनों ही रिश्तों में हमें संभालना है, और दोनों ही रिश्ते टेम्पररी है और म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट से बने हैं। उससे ज्यादा इसको महत्व देना यानी खुद खुद के अंदर ज्यादा दुख निर्माण करने जैसा होगा। Try to see your closest relationships in the perspective of being one of so many in the numerous lifetimes you take as a human, and none is so sacrosanct that you cannot live without or release yourself from if necessary. अगर सच में समझना है तो एक ये जो बात गुरुजी भी हमें बताते थे कि एक संत थे और उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो सारा गांव आ जाता है उनको तसल्ली देने के लिए, उनको ना ये क्या बोलते हैं, हम ना अपने ना कंडोलेंसेस देने के लिए। तो संत तो अपने काम में लगा है, वो तो बिल्कुल जैसे नॉर्मल है, कुछ भी हुआ नहीं है। तो लोग बड़े आश्चर्य से देखते कि आपकी पत्नी का सुबह देहांत हुआ है और आप खाना बना रहे हो, आप झाड़ू पोता कर रहे हो, आप पानी डाल रहे हो, संत आपको क्या लगता है मुझे रोना चाहिए? तो वो बोलते हाँ कुछ तो दुख होगा ना कि इतने साल से आपके साथ थी। कहते अच्छा आप बताओ मैं कौन सी वाइफ के लिए रो, कौन सी पत्नी के लिए रो?
इस जन्म की पत्नी के लिए, उसके पहले पहले, क्योंकि मुझे तो सारे याद है। हमें याद नहीं है, इसके लिए हम भ्रम में पड़ जाते हैं। कहीं किसी दिन अगर हमारे सारे जन्म हमारे सामने कर दे तो हमें बड़ी हंसी आएगी कि किस तरह से हमने अलग अलग लोगों से अलग अलग रिश्ते निभाए हैं, और ये भी एक और जिसको हम निभा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी समझदारी से हम काफी सारे दुख से खुद को बचा सकते हैं। ड्रामा से हम खुद, ये जितना ज्यादा रोना पीटना होता है उतना ज्यादा प्यार होता है। किसने किसने ये नॉर्म्स लगाए हैं इस जीवन में, मुझे पता नहीं। ज्यादा रोना यानी उस वो अपने मुंह से रो रहा है, मेरा क्या होगा करके रो रहा है। जो मर गया उसके लिए तो बिल्कुल कुछ दुख नहीं है उसे, वो दुखी खुद के लिए है कि अभी उसको सारा ये संभालना पड़ेंगे। कोई कभी दूसरे के लिए नहीं रोता है। हम हमेशा, इसीलिए कभी कभी की जरूरत होती है। सो गुरुजी का ये उदाहरण हमेशा सामने रखिएगा अपने, किसी भी दुख के समय ये बाहर निकालने का रास्ता बताएगा। I must add here that being detached from people is in no way a license for indifference, antipathy or complete lack of feelings. ये another warning, क्योंकि कोई कोई लोग ऐसे भी होशियार रहते हैं, वो जो बस क्या शब्द आता है उसको पकड़ के अपने हिसाब से यूज करते हैं। मैंने खुद ने देखा है। बाद में मैं गुरुजी को बताती हूँ कि आप क्लैरिफाई किया करो। लोग अपने हिसाब से आपका सेंटेंस यूज कर लेते हैं और घर जाके बताते, कॉन्टेक्स्ट में बताया ये नहीं बताते, तो मनुष्य की बुद्धि ना कहीं कहीं ज्यादा ही चल जाती है। तो इसीलिए शायद गुरुजी ने यहीं पे भी क्लियर कर दिया है कि डिटैच होना यानी उनसे बर्ताव आपका ठंडा होना नहीं, या फिर उनके प्रति अलूफ रहना नहीं, या उनको बिल्कुल ध्यान न देना नहीं, या फिर कोई भी इमोशंस होना नहीं। नहीं, फिर आप इंसान नहीं रहे, पत्थर। कोई इमोशंस नहीं बचे तो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, सही बात है, पॉजिटिव तो होना, वो हमें इंसान बनाते हैं। तो कंपैशन हो, प्यार हो, ना रिस्पेक्ट हो, ग्रैटिट्यूड हो, ये सब होना ही चाहिए, और वो दिखाना भी चाहिए बिना डरे। बहुत बार लोग ना मुंह में फंसने के डर से थोड़ा थोड़ा कतराते पास आने। डरना क्या है? एनीवे 4 दिन के मेहमान है, जितने दिन है एंजॉय कर लो। इस डर से कि ये खो न जाए, हम खुद को कितनी बार दूर कर लेते लोगों से। कितने लोग हैं जो एक बार हार्ट ब्रेक लेके दूसरी बार प्यार के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। मुन्ना भाई की याद रखो, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। किसी भी एक व्यक्ति से आपकी सांस नहीं रुकती है, आप रोक के बताओ। इतना प्यार है तो आपकी सांस उसके साथ छूटनी चाहिए, नहीं छूटती। भूख लगती है, सांस चलती है, दिमाग चलता है, फिर ढोंग क्यों? ग्रैटिट्यूड से उसको अलविदा कहो, मैच्योरिटी से सिचुएशन को समझो, समझ लो कि इतना ही साथ था और आगे का रास्ता हमें, बाकी के लोग हैं और कोई और भी आ सकता है। बी वेलकमिंग, बंद मत करो अपने दिल के दरवाजे। कहीं किसी और से शायद वो प्यार आपका जो खाते में लिखा है वो मिल जाए। कभी आपका प्यार से विश्वास ना उठे, फिर तो भगवान से विश्वास उठने जैसा है। बी वेरी वेलकमिंग। लेकिन इतना दुख दर्द हम अंदर डाल के बैठ जाते हैं, फिर प्यार के लिए जगह कहाँ बचती है? तो इस तरह से हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम्स अच्छे नहीं है। सो इंक्लूड म्यूचुअल लव, कंपैशन, ग्रेटिट्यूड, ह्यूमैनिटी, rather it affords you the luxury of indulging in them without the risk of suffering. अगर ये चीज आपके अंदर पच गई तो आप उनके प्रेजेंस का पूरा आनंद ले सकते हो बिना डरे कि एक दिन ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा। In conclusion, whatever level of vairagya you achieve, it will be directly and inversely proportionate
to pain and suffering in your life. If it helps you to build inner detachment, keep this famous verse floating in front of your eyes. This too shall pass away. इससे बड़ा सत्य और कोई नहीं है, दुख के लिए भी और सुख के लिए भी. अगर दुखी है तो ये सेंटेंस ये भी नहीं ज्यादा दिन चलेगा. मौसम बदलते हैं, सुबह की शाम होती है, यही तो डिविनिटी हमें दिखाती है, रोज रोज दिखाती है. परिवर्तन ही संसार का नियम है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है. आपका दुख आप अगर परमानेंट नहीं करते हैं तो अपने आप से वो निकल जाएगा. उसी तरह सुख से भी मोह मत रखिए, क्योंकि किसी दिन वो सुख छीन लिया तो आपको दुख आ जाएगा. आज सुख है, लेके आज का दिन खत्म. कल के लिए आप प्लान मत करना, कल का किसी को पता नहीं है, लेकिन आज उसको भी एक्सेप्ट करना ग्रेशियसली. कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे गुरुजी के साथ लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर. आई हैव 2 क्वेश्चंस. किसी ने पूछा, is there any other alternative to means of exchange and sharing that can be applied to the world? The resolution is in the offing, but it is also a complex and elaborate system of the world. Second question है, I am around highly creative people all the time, and some of them are so emotional and depressive, and sometimes that becomes the source of their creativity and art. Similarly, all the terribleness in the world has been the reason for so much art and expression, great music, brilliant films, etc. Why is it so, Guruji? Sometimes when I draw, I feel depressed and cry for no reason, even though I am happy at the back of my mind. All these new thoughts me. Please help. तो ये किसी ने प्रश्न पूछा किसी से. पहला वाला मैं इतना एंटरटेन नहीं करती हूँ क्योंकि उसका ज्यादा मीनिंग नहीं है. सेकंड वाला कि इस जीवन में दुख से कितना कुछ निर्माण हुआ है. ग्रेटेस्ट ऑफ artistic expressions have emerged through lot of pain when it accumulates. तो यहाँ पे शायद ये व्यक्ति आर्टिस्ट है, तो वो बोल रही है कि कभी कभी मैं भी जब तो ना मैं रोने लग जाती हूँ, जबकि पीछे बैक ऑफ द माइंड में खुश हूँ, लेकिन फिर भी मैं फूट फूट के रोने लग जाती हूँ. ऐसा क्यों? ये सारे फीलिंग्स क्या है? और मोस्ट क्रिएटिव पीपल गो थ्रू सच हेवी डिप्रेशंस. ऐसे क्यों? तो इसका गुरुजी ने बहुत सुंदर आंसर दिया है. No, there is no immediate substitute to money as a medium. वो first question. I think I will touch the second directly. It's true that the pain has often been a source of inspiration to so many in different artistic field. This is how it works. Artistically oriented people are sensitive at their heart. क्रिएशन के लिए चर्निंग की जरूरत होती है. कुछ चर्न होता है, फिर वो पेन हो या एक्सटैटिक, इसमें से ही कुछ निकलता है. जब सन है तो उसमें भी कभी कभी दर्द से जो सेपरेट, कितने भक्ति के सॉन्ग्स निकले हैं. आप कभी मीरा के भजन की इंटेंस ना पेन को महसूस कीजिए. ना बहुत सारा क्रिएटिव टैलेंट वहां से निकलता है, वो हार्ट से उभरता है. एंड सच क्रिएटिव पीपल आर बेसिकली सेंसिटिव. तो ना क्रिएटिविटी उनकी निखर के आती है ऐसे किसी एक्सट्रीम इमोशन से. ऑफन दे सफर मोर इजीली और डीपली, क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव होने से हर चीज उनके दिल को बहुत ज्यादा लग जाती है. सम जस्ट लूज इट कम्प्लीटली. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाता है, वो बस उस दर्द में खो जाते हैं. लेकिन कोई कोई लोग पेन को, अपने दर्द को एक अच्छा ना आउटलेट देते हैं, एक उसको ओपनिंग देते हैं और बहुत सुंदर कुछ क्रिएशन हो जाता है. गुलजार की पोएट्री उनके बहुत दुख से निकलती है, इसीलिए हमारे दिल को छू जाती है. लेकिन कोई कोई गलत तरीके से उसमें फंस जाता है, वो उसमें डूब जाता है, फिर शराब में, ड्रग्स में, पता नहीं किस में, और दे रूइन देयर लाइफ.
सो किसी भी चीज को देखो ना, कितना कितना सुंदर है ये कि दर्द को भी एक अच्छा एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं, फिर खुशी को कितना एक्सप्रेशन अच्छा दे सकते हैं. Others ease their pain or at times overcome it by dwelling passionately into their field of art. वो अपने अपने को झोंक देते जैसे अपने आर्ट में एक्सप्रेस करने में, और एक बहुत सुंदर क्रिएशन कर देते हैं. Whether this brings the artist out of his misery is debatable, but certainly gives the world a gift of his or her brilliance. यहाँ पे गुरुजी को थोड़ा डाउट है कि ऐसे दुख से निकले क्रिएशन से क्या उस आर्टिस्ट को रिलीफ मिलता है, वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है. उसको कितना ना सुकून मिलता है वो तो पता नहीं, लेकिन दुनिया को एक मास्टरपीस जरूर मिलता है एक्सपीरियंस करने के लिए. The reason you cry when you paint is probably because you are soft within and the compassion flows out at seeing the imperfect and unjust world around you. कभी कभी ना एक कोमल हृदय को आसपास के दुख से भी ना वो एक कहते ना दुख उत्पन्न होता है, वो उनका नहीं होता लेकिन वो दूसरों का दुख महसूस कर सकते हैं. तो इट्स जस्ट अ क्वालिटी ऑफ दैट हार्ट. एक और क्वेश्चन है, टाइम है हमारे पास, एक मिनट, आई हैव एक्सीडेड द टाइम. लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक आई कंप्लीट इट. What if an individual were to maintain a neutral relation with majority of people with whom he comes in contact? He does care for them or is not indifferent to them but may not show the emotions. In the spiritual sense, can we say that such an individual practices a good level of inner detachment from people? ये किसी ने प्रश्न पूछा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से एक संतुलित, एक न्यूट्रल सा बिहेवियर रखता है, इनडिफरेंट नहीं है, ठंडा या ना उसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल एक्सचेंज भी नहीं है, तो क्या इस तरह का व्यक्ति के लिए जरूरी है? तो गुरुजी इस तरह से उत्तर दे रहे हैं. इनर डिटैचमेंट मीन you show a cold exterior or be neutral with everybody. इनर डिटैचमेंट यानी अनासक्त होना, यानी लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं है, या फिर न्यूट्रल या फिर इमोशनलेस बनना जरूरी नहीं है. इन दैट केस यू लूज द मोस्ट डिवाइन क्वालिटी अबाउट अ ह्यूमन बीइंग. क्योंकि अगर आप ऐसे अंदर से कठोर और कोल्ड हो गए तो आपकी सबसे खूबसूरत जो क्वालिटी है एक इंसान की, प्यार और ना कंपैशन, वही आप खो दे रहे हो. यू मस्ट अल्टीमेटली प्रैक्टिस अनकंडीशनल यूनिवर्सल लव. जब भी आपकी लेवल वहां तक पहुंचे, क्योंकि ये सबसे डिफिकल्ट होता है अनकंडीशनल प्यार, क्योंकि कहीं हमारा मोह अटैच हो जाता है और उसमें ह्यूमन इमोशंस आ जाते हैं. एंड इफ यू प्रैक्टिस लव यू मस्ट शो इट इन सम वे और अदर, else it's of no use to the receiver. ये बात कही है गुरुजी ने. प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द लिसनर्स, आप जो प्यार है उसको दिखाने से मत डरिए. मैंने कितनी बार लोगों से सुना है, स्पेशली मेन को ये पता नहीं कहाँ से ये होता है कि अगर वाइफ से प्यार जताएंगे तो वो सर पे बैठ जाएगी. सर पे तब बैठेगी जब आप कमजोर हो. प्यार कमजोरी नहीं होता है, डर कमजोरी है आपकी, प्यार में कमजोरी नहीं है. तो प्यार जताइए, प्यार बढ़ता है. मन में रखने से ना उस व्यक्ति तक वो पहुंचता है, नहीं आपको उसका लुत्फ आता है, उसका आनंद आता है. ये ऐसी भावना है पहुंचनी चाहिए लोगों तक. तो अलग अलग तरीके से क्यों न हो, लेकिन आपका प्यार से शेयर होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए, बिना या फिर मुझे कमजोर मान लेंगे. बहुत बार मर्दों को ये होता है कि प्यार दिखाना यानी ना कमजोरी का प्रतीक है. नहीं, प्यार कमजोरी नहीं है, प्यार तो ताकत है. तो ये सब जो कहते हैं ना, ये मिसकंसेप्शन से वो हटने चाहिए. एट द सेम टाइम डोंट थिंक यू ओन द पीपल यू शो लव टू और थिंक यू कैन नॉट लिव विदाउट देम. वार्निंग है, क्योंकि प्यार हम मोह में पड़ जाते हैं और फिर लगता है कि ये मेरा है, जबकि हमारा यहाँ पे कोई नहीं. और
ऐसे करते करते हम ऐसा मानने लगते कि इनके बगैर हम जिंदगी असत्य है, क्योंकि हम जिंदा रहते हैं, हमें रहना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा जर्नी हमें कंटिन्यू करना पड़ता है, हमारा कैरेक्टर जो रोल लिया है वो हमें पूरा करना पड़ता है। दैट इज वेयर इनर डिटैचमेंट कम्स इन। सो इस हैंडलिंग में हमारी इनर डिटैचमेंट है। आई होप देर इज लॉट टू टेक फ्रॉम दिस सेशन। बहुत कुछ लेने के लिए है इस सेशन से, क्योंकि अगर ये बातें आपके समझ में आ गई, आपके लाइफ से 70% दुख चला जाएगा। और इट्स अ प्रॉमिस, और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जिस क्षण आप उस व्यक्ति से मोह से मुक्त हो जाते हो, आसक्ति से मुक्त हो जाते हो, अटैचमेंट से मुक्त हो जाते हो, वहां से आपका फ्रीडम और उस व्यक्ति का भी फ्रीडम शुरू हो जाता है। और प्यार जताइए, प्यार दिखाइए, प्यार बांटिए, मोह में मत पड़िए, सबको एंजॉय कीजिए, सब कुछ एंजॉय कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये थोड़े दिन का है। आज मैं ले लूंगा, कल नहीं है, कोई बात नहीं, जब तक सुख आता नहीं है मैं राह देखूंगा, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन बीच के स्टेज में भी मैं खुशी रहने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से अगर कुछ कम ज्यादा हो गया हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे तो बड़ा आनंद आता है गुरुजी की बात को आप तक पहुंचाने का, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अगले फ्राइडे मिलते हैं। बीच में अगर आपके कोई क्वेश्चंस, क्वेरीज, सजेशंस है, दे आर मोस्ट वेलकम। लव यू ऑल। थैंक यू।